And we have started with the numericals. Design a spigot and socket type quarter joint to connect two similar rods subjected to 20 kilonewton axial load, right? Now here axial load means a load passing from the geometrical axis. It can be tensile load or it can be compressive load, right? So it is written here in both directions. So the load is applied in both direction, outward and inward. तो आप समझ सकते हैं कि भी इसका मतलब ये हुआ भी टेंसाइल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही में कंप्रेसिव भी लोड अप्लाई कर रहे हैं, राइट? नाउ द टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव कितनी दी हुई है? इट इज़ 50 मेगा पास्कल एंड द शियर स्ट्रेस इज गिवन इज 40 मेगा पास्कल and also the crushing stress is given 100 megapascal. Okay, now we have also discussed the initial finding of dimensions, right, up to 5 equations, right? So first is a failure of rod end that we have seen. तो इसमें क्या है? लोड इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑन विच वी आर अप्लाइंग द लोड. ओके, एंड दिस इज द सिग्मा टी, द स्ट्रेस. And by that equation we are able to find the diameter 24. Okay, so this is the minimum diameter required to sustain given load, right? So this much is the minimum diameter required for the given load of 20 kilonewton and the given safe stress limit of 50 megapascal. Okay, बाद में हमने क्या किया था? We have also tried to find the failure of spigot in tension across the weakest sections, right? मैंने समझाया था आपको भी weak section का क्या मतलब है. Weak section means minimum cross section area. तो स्पीगोट एंड में कहाँ है? दिस इज एट एग्जैक्टली एट द स्लॉट साइड. ओके, वहाँ पे मटेरियल कम है. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर द फेलर ऑफ दिस पार्ट अंडर द टेंशंस एंड द इक्वेशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस. ओके, सो P इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, द आउटर डायमीटर minus the rectangle slot. Okay, so that rectangle slot is this. So outward dimension is D2 and its thickness is T. Okay, now by taking relation D2 is equal to 4 times T, we are replacing this T over here, right? And we are finding the diameter D2. याद रखे भाई, डायमेंशन जो भी आएगा आपको क्या करना है? बाय थंब रूल 4 mm ऐड करना है. 4 mm और 6 mm ऐड कर सकते हो और इवन नंबर लेना है. ठीक है. Now, in the third equations, what we have done, we try to find out we simply consider the crushing of the quarter and the rod, right? Now, why we consider here? हमने ऐसा क्यों किया? The reason is the same section, right? मैंने क्लास में समझाया था कि सेम सेक्शन, यानी कि जो क्वार्टर जॉइंट है उसमें जो क्वार्टर लगेगा यहाँ पे बीच में, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर, राइट? सो व्हेन यू पुल इट अप, when you apply the tensile load, it is going to strike against these sections, right? वहाँ पे ये टच करेगा, कंप्रेस करेगा, राइट? सो ट्राई टू इमेजिन द पॉसिबिलिटीज. भाई लोड लगाएंगे तो क्या होने वाला है, ठीक? तो दोनों जो क्वार्टर पार्ट है, इट इज गोइंग टू ज्वाइन सॉकेट एंड स्पीगोट एंड, but it is going to contact over here upon the tensile load, right? So because of applied tensile load, there is a contact over here. So here two surfaces are compressing each others, right? So that's why we need to verify the generated or induced stress, compressive stress over here, right? That's why we consider the crushing of quarter. So equation is same, P is equal to area D by 2, same cross section area on which the load is applied P. But here, because the two components are forcing each other, they are trying to crush each other. So we are considering the crushing stress over here, right? Now by putting the values, we are simply finding the crushing stress. Okay, so it comes out to be 88.80. Now what is given value is 100 megapascal. We have discussed this, right? Now earlier the two things are given. One is 50 megapascal and second is 100 megapascal, right? अब इसका क्या मतलब हुआ? कंप्रेसिव स्ट्रेस कब इस्तेमाल करनी है और क्रशिंग स्ट्रेस कब इस्तेमाल करनी है? कंप्रेसिव स्ट्रेस इस कब इस्तेमाल करनी है? जब व्हेन यू आर अप्लाइंग अ लोड इन एक्सियल डायरेक्शंस, राइट? एंड देयर इज अ सिंगल कंपोनेंट, it is not meeting with any other component, right? But in case of crushing, what happened? Two surfaces of different component are forcing against each others, and we are applying the compressive load. At that time we have to use the crushing stress. Okay, so here the given value is 100 megapascal, but induced stress is 88, means बहुत कम है. It is very safe because the given value is 100 megapascal है और हमारी जो induced stress आ रही है that comes out to be 88.80 megapascal. अगर ये बताइए बच्चों के स्टूडेंट्स के हम क्या करेंगे? इफ़ induced stress is more than 100 से ज़्यादा आएगी तो क्या करना है? That means this part
ये जो स्पीगोट है, बिकॉज ऑफ द क्वार्टर, राइट, क्या होगा, ये जो सेक्शन है वो क्रश हो जाएगा, आइदर क्वार्टर में क्रश होगा या फिर स्पीगोट में होगा, इतना एरिया क्रश होगा. इन दैट केस वी हैव टू इंक्रीज द डायमेंशंस, राइट. सो स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा आ रही है, इट इज़ मोर देन 100 लेट्स से, राइट. तो क्या कर सकते हैं, लोड को कम करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते हैं. सो लोड इज नॉट कंट्रोलेबल फैक्टर हियर, वी हैव टू कंसिडर मैक्सिमम लोड कमिंग आउट इन असेंबली, राइट, और कंपोनेंट. बट व्हाट वी कैन प्ले विथ, हम एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे एरिया कौन सा बना हुआ है, D2 है, 2 वेरिएबल से बना हुआ है, राइट. तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, डायमीटर को बढ़ाएंगे. तो डायमीटर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगी, एंड विच विल बी लेस देन द 100 मेगापास्कल. सो देयर आर द न्यूमेरिकल वेयर यू विल फाइंड द क्रशिंग फेलर और द इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इज कम्ड आउट टू बी मोर देन द गिवन वैल्यू. इन दैट केस क्या करना है, हमें जो डायमेंशंस हमारे फाइंड किए हुए हैं उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है. जो फोर्थ इक्वेशन है, दैट वी कंसिडर द फेलर ऑफ स्पीगोट कॉलर इन क्रशिंग, ठीक है. अब ये क्यों किया हमने, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट दिस D3 डायमेंशंस. अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये D3 डायमेंशन मिलने वाला ही नहीं, और क्रशिंग क्यों होगा. सो जस्ट गो थ्रू द असेंबली, ठीक है. नाउ यहाँ से हम लोड अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो कॉलर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलर, सो हियर इट इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट, राइट. तो पुल कर रहे हैं, ये इस तरफ से पुल कर रहा है, ये पुल रहा है, तो क्वार्टर की वजह से क्वार्टर क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पुल कर रहा है, तो देयर आर चांसेस. तो जो कॉलर है, ये सॉकेट कॉलर के सामने क्या होगा, कंप्रेस होगा, राइट. सो वी आर कंसिडरिंग दैट एरिया under the crushings, right. So that area is basically how much, the higher dimension is D2, D3 and the inside diamond is D2, right. So this is simply annular area. So again same equation, stress is equal to apply load into area. Now area कौन सा होगा, outside diameter जो D3 वाला एरिया है, pi by 4 D3 square minus pi by 4 D2 square minus, right. So same area, so that will give you simply a ring area, okay. Now multiply by the compressive stress, okay, that is given to us. Now here, because the two components are forcing each other, and there is a crushing is created, crushing action is observed, that's why we have to consider the crushing stress, okay. Now here what will happen, we are going to replace the value of load. D2 हमें मालूम है, आगे से हमने फाइंड किया है, तो D3 मिलेगा. D3 जो मिलेगा दैट विल बी द बाय थंब रूल, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 4 mm और 6 mm ऐड कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज थंब रूल, मीन्स इट नॉट साइंटिफिक, इट इज प्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस, राइट. तो हम लेंगे 36 mm एज एन आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ इक्वेशंस, राइट. फेलर ऑफ द स्पीगोट कॉलर इन शीयरिंग. अब यह ध्यान से पढ़े भाई, ये इक्वेशन क्या कहना चाहता है कि इट इज़ सिंपली अ शीयरिंग. मैंने बताया था क्लास में, जैसे हम फिंगर से रिंग निकालते हैं तो दैट इज शीयरिंग एक्शन, यू आर पुलिंग योर रिंग स्लाइडिंग ओवर योर फिंगर एरिया. सो देर आर पॉसिबिलिटीज, लेट्स लुक एट द फिगर. यहाँ से हम देखेंगे, हम यहाँ से धक्का मार रहे हैं, ठीक है, तो अब पुल कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो चांसेस है कि बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसिव एक्शन these rings in 3 dimension, if you consider, may simply shear off from this location, right. So these are the possibilities. So by considering that shearing area, we are finding another dimensions called T1. So what will be the possibilities, भाई कौन सा एरिया होगा, ये देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है. So we want circumference area, ये कॉलर का एरिया है, ठीक है. So that diameter is pi D2, तो circumference मिल गया, multiply by thickness T1. Now this T1 is simply, you can say, let's look at the figure. So this is what I'm talking about, right. So circumference pi D2 into multiplied by T1. So this is what the surface area that is going to shear off, and the multiply by the shear stress. Because it is shear failure, we have to write the stress in shear, right. Now let's put the value and find out the thickness. So here we are getting 6 mm. The value is 6 mm. Now दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में कौन सा कंसिडर हमने किया हुआ है, शेयर फेलर ऑफ स्पीगोट एंड इन स्लॉट. देखिए ध्यान से देखिए भाई, फिगर क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपली क्वार्टर है, ओके. जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हेन यू अप्लाई फोर्स, देयर आर पॉसिबिलिटीज. अगर यहाँ से क्या करेंगे, पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो क्वार्टर है यहाँ से क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो रेक्टेंगल पीस है बाहर निकल आएगा इस तरह से. सो ये जो एरिया है वो शेयर ऑफ हो सकता है और पीछे वाला भी हो सकता है, लेकिन एरिया कौन सा है,
A into D2, but there are two areas, front side and the back side. So we have to multiply by 2 times, right? So this way we are simply finding the safe value of A. जो A है ना, हम उसको फाइंड कर रहे हैं. D2 तो हमें मालूम है कि A कितना रखना पड़ेगा, कम से कम यहाँ एंड से स्लॉट की स्टार्टिंग पोजीशन है कितनी रखनी पड़ेगी. तो हमें इस इक्वेशन से A डायमेंशन मिलेगा. अगर उससे हम कम रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 mm फाइंड किया है, अगर हम 7 mm रखेंगे क्या होगा, तो दैट इज डेफिनेटली फेलर ऑफ द स्पीगोट एंड फ्रॉम शेयरिंग एक्शन टू द एंड पोजीशन, राइट. बाकी के डायमेंशन हमने सेव किए हुए हैं कंप्रेशन में, शेयर फेलर में, राइट. लेकिन अगर हम A डायमेंशन कम रखेंगे देन द रिक्वायर्ड वैल्यू, सो डेफिनेटली योर स्पीगोट एंड इज गोइंग टू फेल. ओके, नाउ सिंपल इक्वेशन इज सेम. रिमेंबर ऑलवेज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ पे स्ट्रेस कौन सी आएगी, बिकॉज वी आर हैविंग शेयरिंग फेलर, सो वी आर गोइंग टू पुट इट शेयर. नाउ लोड हमें मालूम है विच इज 20 किलो न्यूटन, ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरिया. तो कौन सा है, A and D2, दैट इज रेक्टेंगल, बट we have two areas, front side and back side, so we are going to multiply by 2 times. Okay, so here we are going to insert the same thing over here, 20 kilo Newton load, then twice A into 30. 30 is a dimension of diameter D2. Okay, now safe stress, shear stress is given 40 megapascal. Okay, so I am writing 40 megapascal is equal to 40 Newton per millimeter square. Okay, you can convert this value, you will have a idea. Now we are finding A value 8.3, we are going to keep it 9 mm. Okay, or let's make it even value, that is 10 mm. So at least we have to keep 10 mm values so that it is not going to fail from these locations or in shear failure. Now let's talk about the socket end. Okay, अब सॉकेट एंड कौन सा पार्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट, और कैसे सिंपली द बिगेस्ट पार्ट इन विच ऑल द पार्ट्स आर फिक्सिंग, राइट. अब कैसे करेंगे, कौन कौन से डायमेंशंस है. सो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग द फेलर ऑफ सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट. ठीक है, स्लॉट कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज द स्लॉट. ओके, जैसे हमने स्पीगॉट में कंसिडर किया, जस्ट लुक एट दिस बॉटम फिगर, राइट. सो हियर वी गोइंग टू हैव अ इंसर्शन ऑफ सिंपली अ क्वार्टर पीस, राइट, और बीच में क्या आएगा, स्पीगॉट आएगा. ठीक है, नाउ दिस इज द वीकेस्ट पोर्शन. व्हाई, बिकॉज it's a hollow inside and also there is a slot, so there is a minimum material found here across the slot section, right. So we are considering the tensile failure of across the slot. अब ये डायमेंशन कहाँ से आएगा, किस तरह से हम काउंट करेंगे उसको, तो सिंपल है. पहले वाला बाहर का डायमीटर यानी कि पूरा सर्कुलर एरिया ले लीजिए, तो हमने ले लिया π/4 d1 स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस इनसाइड वाला डायमेंशन विच इज d2. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए. ठीक है, सो वी हैव सिंपली रिंग एरिया, आई एम गोइंग टू कॉल इट रिंग एरिया. ओके, देन आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट दिस रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कहाँ से बना हुआ है, वेरी सिंपल, d1 माइनस d2 से बना हुआ है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द वर्टिकल हाइट ऑफ रेक्टेंगल and this t is a width. Okay, so multiply by width. So I am subtracting a rectangle area from the ring area, so whatever left out is this much area, that is cashew shape area. Okay, so now problem is, because there are multiple variable over here, so we are going to replace the dimensions. Okay, now see π/4 d1 square is unknown to us, d2 is known to us, right, d1 again unknown to us, and t is known to us. Now by placing the values we have to simplify these equations. Now here, because the pi is involved here, we are not going to get a proper linear equations, so simply simplify the equations and come out to a proper form. Okay, now we have to solve these equations in a very systematic manner. देखिए यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, आई होप कि आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे d1 स्क्वायर माइनस 9.5 d1 है और माइनस 112, दिस इज आवर लास्ट इक्वेशंस. अब इसका क्या मतलब निकलता है, वी वांट टू फाइंड आउट d1, हमें d1 फाइंड करना, कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए डेसिमल में पॉइंट्स नंबर्स हैं, सो अ नॉर्मल टेक्निक विल नॉट अप्लाई हियर. सो मीनिंग क्या है इस इक्वेशन का, कि हमें d1 का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट पोर्शन बिकम 0 विच इज इक्वल टू राइट साइड. इसका मतलब ये है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d1. अब कैसे निकालेंगे, देयर इज ऑल्सो वन मेथड कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड्स. अब इसका मतलब क्या है, ट्रायल करना है और एरर्स उसको करेक्ट करना है.
तो देखिए D1 जो डायमेंशंस है वो लार्जेस्ट डायमेंशंस है। कहाँ से है, थोड़ा हम लॉजिक दौड़ाएंगे, ठीक है। तो D1 कहाँ पे है हमारा, ये रहा, ठीक है। वो कौन से डायमेंशन से बड़ा है, D2 से बड़ा है। अब D2 हमें मालूम है 30, तो D1 कितना होगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मोर देन द 30। सो वी हैव टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस डायमीटर D1 in case of trial and error method, right? So first I have choose 40 mm. Now I am going to insert this value in this equation and I am going to find out what is the left side. तो left side कितनी होगी, so that is comes out to be 95 which is positive. अब इसका क्या मतलब निकलता है, टाइम लाइन पर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये D1 वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट कैन बी हायर और लोअर। अब देखिए कि D1 हमने 40 ली तो क्या हुआ, पॉजिटिव साइड पर हमारा आंसर आया 95, राइट। सो वी वांट टू मूव टूवर्ड 0, हमें 95 नहीं लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 40 से कम डायमीटर लेना पड़ेगा। सो आई हैव रिड्यूस D1 फ्रॉम 40 टू 38। तो 38 मैंने डायमेंशन लिया और उसी डायमेंशन को मैंने इक्वेशन में ऐड किया, फिर से फाइंड आउट किया कि भाई व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अगेन इट कम्स आउट टू बी -41.9। अब यहाँ पे टाइम लाइन पर ड्रॉ करेंगे, भाई D1 जब मैंने 38 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे कौन सी मिली, -41.9, राइट। अब यहाँ से हम सिंपल लॉजिक दौड़ा सकते हैं कि भाई D1 का कौन सा डायमेंशन होगा, डेफिनेटली इट विल बी द 38 एंड बिटवीन द 40। तो 40 है और 38 के बीच में वाला कौन सा नंबर आएगा, 39। वो हमें क्या देगा, 0 के करीब डायमेंशन देगा, राइट। सो लेट्स फाइंड 30 D1, let's take the D1 is equal to 39. So what we have is left hand side is 25.5. So आप देख सकते हैं टाइम लाइन पे क्या हुआ, हमने 39 लिया तो जो इक्वेशन का वैल्यू है जो लेफ्ट साइड आई है दैट इज कम्स आउट टू बी 25.5, राइट। नाउ cancel out this value, forget about 40. Now the value lies between 38 and 39. तो एक माइनस है एक पॉजिटिव है, तो उसके बीच में क्या है, 0 है। तो 38 और 39 के बीच वाला जो डायमीटर है वो हमारा आंसर है। अब एज एन इंजीनियर बहुत लॉजिक है कि 38.5 लेंगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड बेस्ड ऑन दिस इटरेशन। फिर देखो फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड द डायमीटर D1 इज 40। आप बोलेंगे 42 नहीं ले सकते हैं, यू कैन टेक इट, that will give you higher diameter of socket, no problem, but you should not take even more higher value 58 60 because that makes your quarter joint very heavy unnecessarily, right। factor of safety बढ़ जाएगा, आपके मटेरियल ज़रूरत से ज़्यादा आप दे रहे हो, ठीक। तो बेस्ड ऑन दिस ट्रायल एरर मेथड्स इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई हमें कैसे मालूम पड़ेगा भाई कौन सा वैल्यू लेना है। सिंपल लॉजिक है, मैंने अभी बताया कि D1 का वैल्यू कौन सा लेना है। आप फिगर में देखिए कि D2 का जो वैल्यू आया है, जो भी आएगा, आपके केस में हो सकता है अगर मैं एग्जाम में 20 की जगह 40 रख दूं तो D2 कोई अलग आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 42 आ रहा है तो इसका कौन सा आएगा, 42 से ज़्यादा ही आएगा, तो यू कैन स्टार्ट विद द 46, राइट। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रायल एरर मेथड। आपको आगे बढ़ना है, फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशन कौन सा है। पॉजिटिव आ रहा है तो उसको डायमीटर को कम करिए, नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 पॉजिटिव वैल्यू 1 नेगेटिव वैल्यू। सो इन बिटवीन एवरेज ऑफ दिस 2 वैल्यू विल बी योर आंसर, राइट। लेकिन यहाँ में हमारे जो केस अभी है चल रहा है, डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फाइनल आंसर कौन सा आ रहा है, 39 आ रहा है, और 39 और 38 के बीच का एवरेज वैल्यू कौन सा होगा, 38.5। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यू, सो वी आर गोइंग टू फिक्स द आंसर एज 40, राइट। 40 आप 42 भी ले सकते हो, 2 mm ज़्यादा ले सकते। बाय थंब रूल यू कैन टेक इट 4 mm हायर, 4 to 6 mm, नो प्रॉब्लम, राइट। बट हियर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एज 40 mm एज अ फाइनल आंसर। सो फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशंस this method is called trial and error methods, right? So from above observations our answer of socket diameter, outside diameter, is D1. Now let's consider the same socket part again. Now again what we are finding here, we are going to consider failure of the socket collar in crushing. देखिए मैंने वर्ड हाईलाइट किया है, क्रशिंग। अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पे क्या है, क्वार्टर लगेगा, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अब इसको हम पुल कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या पुल करेंगे, स्पीकोट वाला एंड है वहाँ से पुल करेंगे। तो हो सकता है कि जो क्वार्टर है यहाँ से ये प्रेस करेगा, उसको धक्का लगाएगा। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज, राइट। तो आमने सामने होगा तो अगेन देयर गोइंग टू बी अ
रेजिस्टिंग एरिया, तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्कुलर एरिया, तो इतना एरिया जो है वहाँ पे कॉटर कांटेक्ट करेगा किसको, सॉकेट को, राइट. सो दिस कांटेक्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजंस, आमने सामने आएंगे. सो वी वांट टू फाइंड आउट दीज एरियाज. सो दैट्स व्हाई हियर इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, फेलर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग. ठीक है, अब कॉलर की बात करें, दोनों तरफ होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. ठीक है, सो हियर बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस कॉलर, तो हम क्या करेंगे, अभी क्वार्टर जो है यहाँ से धक्का लगाएगा, तो ये जो एरिया है हमें वो फाइंड करना है, बिकॉज बीच में तो क्या है, होलो पार्ट है. सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दीज रेक्टेंगल्स. ओके, सो क्रशिंग होगा बिकॉज व्हेन यू पुल इट, हम टेंसाइल लोड लगाए तो जो क्वार्टर वाला जो पीस है वो दोनों को जोड़े रखता है, लेकिन जोड़े रखे में क्या होगा कि दोनों जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्या हो सकती है, एक दूसरे को कंप्रेस करेगी. सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द क्रशिंग ऑफ कॉलर. ओके, नाउ व्हाट इज एरिया. अब एरिया को ध्यान से देखें, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, D4 माइनस D2. तो D4 कौन सा है, हाईएस्ट डायमीटर है, ये रहा. ठीक है, तो हाईएस्ट डायमीटर, उसमें से बीच वाला कौन सा है, D2, विच इज़ अ स्पीगोट एंड. तो ये जो अपना एरिया बनता है उस एरिया को फाइंड करना है. तो वेरी सिंपल कि आउटसाइड वर्टिकल हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज D4 माइनस D2. सो वी आर फाइंडिंग दिस रेक्टेंगल्स, राइट. I am interested to find this area, right? So outside diameter is D4 and the inside diameter is D2. So D4 minus D2 is a vertical height and multiply by the quarter thickness, right? And we are going to multiply by the compressive stress. So this is resisting area. भाई स्टूडेंट्स, हमको याद ये रखना है कि कौन से एरिया पर हम कौन सा फेलर कंसीडर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें डायमेंशन मिलेंगे. ओके, नाउ लेट्स रिप्लेस द वैल्यूज़. हमें क्या करना है, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ हैं उनको इंसर्ट कीजिए, देन फाइंड आउट यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर. नाउ व्हाट वी हैव इज D4 वैल्यू इज 56.66 millimeter. नाउ एज अ थंब रूल यू कैन टेक एट 4 mm in this value, right? But as of now I am going to take 58 mm. Okay, so 58 mm is your answer for the socket collar. Now let's consider the failure of socket and in shearing. देखिए ध्यान से देखिए, वर्ड क्या लिखा हुआ है, फेलर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयरिंग. अब ये कहाँ से आएगा, क्या होगा. ओके, ध्यान से देखिए, ये लिखा है, ये रहा पार्ट. ठीक है, अब इसको क्या करें, अभी यहाँ पे ये क्वार्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेजिन कीजिए, हम इसको पुल कर रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो हो सकता है कि जो पीस है हमारा, ये जो पीस है यहाँ से शीयर ऑफ हो सकता है, जैसे हमने सॉकेट में स्पीगॉट में कंसिडर किया. यहाँ पर टॉप में देखिए फिगर में, तो ये छोटा सा पीस है वो निकल जाएगा, जस्ट लाइक अ पुलिंग आउट योर रिंग फ्रॉम द फिंगर, राइट. तो वो एरिया हमें कंसिडर करना है. अब देखिए फ्रंट साइड भी है, बैक साइड भी है, तो 2 एरिया आएगा. सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग 2. D4 माइनस D2 सेम एरिया, अगेन रेक्टेंगल D4 माइनस D2. ठीक है, ये रहा एरिया मेरा. ठीक है, मैं इरेज करता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये छोटा सा एरिया है, पीछे वाला भी है. सो D4 माइनस D2 इंटू C. सो दैट वे वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द थिकनेस. ओके, C एंड shear failure, that is tau. So here we are going to insert the 20 kilonewton value, then this, right. अब स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि 2 कहाँ से आए, ये फ्रंट वाला एरिया भी है और पीछे भी है. So that's why the rectangle height is D4 minus D into C, but there are 2 areas, front and back. That's why we are multiplying 2, because we are applying load on 2 areas, not a single area. Okay. Now from this equation we can find the C value. C is equal to, comes out with 10. So let's look at where is the C in the figure. So C is this value. Look at very carefully. Okay, तो हमें ये एरिया कम से कम लेना है, मतलब वो shear fail नहीं होना चाहिए सॉकेट का कॉलर. Now let's talk about the final component, quarter. Now failure of quarter in shear. तो सबसे पहला इक्वेशन कौन सा है, shear failure हो सकता है, क्योंकि जब भी हम उसको फोर्स लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी यहाँ से वो shear fail हो सकता है, राइट. सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, जहाँ से 2 कंपोनेंट स्लाइड हो रहे हैं, ये रहा स्पीगॉट और ये जो है अपना सॉकेट है. सो देर आर पॉसिबिलिटी, अगर क्वार्टर वीक है तो यहाँ से शीयर फेल होगा 2 जगह से, यहाँ से और यहाँ से. सो आप देखिए फिगर में कौन सा लिया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस एरिया एज अ शीयर फेलर, बट हियर इंस्टेड ऑफ टेकिंग
दी, बिकॉज अब देखिए कि एक शेप कौन सी, एक साइड कौन सी है, स्ट्रेट है और दूसरी टैपर है, राइट. तो हो सकता है कि दोनों एरिया थोड़ा प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक एवरेज वैल्यू दैट इज बी. तो दोनों में एरिया में हम क्या कंसिडर करेंगे, बी वैल्यू. सो हियर the load P is applied on 2 times the rectangle area. So this is B into T. But there are two areas, top and bottom. That's why we have 2 over here, right? Now, because this is shear failure, we are going to take the shear stress. Now replace the value and find out the width B. Now we are going to take as 36 mm. So at least we have to keep the quarter width B is equal to 36. अब ये बताएं अगर इससे कम लेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली shear stress induced will be more than the 40 mm. 40 लेकर हमने क्या किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है. अब अगर हम इससे कम लेंगे विड्थ तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. अगर एरिया हम कम करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली दिस डिवीजन विल गिव यू द हायर वैल्यू, दैट इज induced stress will be more. If it is crossed more than the safe value, definitely the quarter joint is going to fail in shear failure, right? Every time we have to verify this. तो हम यहाँ डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, we are going to take the given safe value and finding the dimensions. उल्टा भी हो सकता है, डायमेंशन हमारे पास होंगे तो उसको induced stress को फाइंड करके वेरीफाई करेंगे. अगर induced stress कम आ रही है सेफ वैल्यू लिमिट से तो हमारे डायमेंशन जो फाइंड आउट किए गए या फिर दिए गए हैं वो सेफ है अंडर द गिवन लोडिंग कंडीशन. ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन, फेलियर ऑफ क्वार्टर इन बेंडिंग. अब ये देखिए ये थोड़ा लंबा पीस है और यहाँ से सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. तो पॉसिबिलिटी है कि वो बेंड कर सकता है. क्यों बेंड करेगा, क्योंकि ये जो है जिस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं इट वर्क्स एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. ये दो सपोर्ट है सॉकेट से आ रहे हैं और ये जो पुलिंग आ रहा है स्पीगोट एंड से आ रहा है. उसको आप वर्टिकल करके देखिए, ये स्पीगोट वाला है और ये जो रिएक्शन है सॉकेट वाला है, राइट. सो यहाँ से मैंने फिगर में ड्रॉ किया हुआ है और क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था. लेकिन बट फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर फाइंडिंग द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन क्वार्टर जॉइंट, दिस इज द इक्वेशंस, राइट. सो बेंडिंग स्ट्रेस इज सिंपली बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय सेक्शन मॉड्यूलस जेड. यहाँ पे मैक्स क्यों लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है बेंडिंग स्ट्रेस, वही हमें फाइंड करनी है. सो वी आर गोइंग टू टेक लोड एंड इट्स डिस्टेंस विच गिव द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. अब देखिए ये आमने सामने हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है कि जब ये लीनियर इक्वेशन होगा और लीनियर सरफेस पर लोड लगेगा, यूडीएल लोड लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. सीजी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से क्या होगा, लोड पास करेगा. तो इट हमारे लिए वो बहुत आसान है. द लोड इनटू इट्स डिस्टेंस, राइट. सो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा होगा, सो दिस इज d2/2, so it's going to be d2/4. okay, it's very simple. So just remember these equations. okay, कैसे आया मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था. So finally we have to remember this equation, that is the bending moment, that is load and its distance, final distance. तो आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन में रखना है और हमें क्या करना है, ये जो सेक्शन मॉड्यूलस जेड है वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है. दोनों का डिवीजन फाइंड करके हमें क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस. जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी, लेट्स ट्राई विद द न्यूमेरिकल्स. ओके, सो हमने क्या किया, सारे वैल्यू पुटअप किए हैं, क्लास में हमने किए थे. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट इज 121700 और जो सेक्शन मॉड्यूलस जेड जो है 1620. अब सेक्शन मॉड्यूलस जेड क्या है हमें मालूम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, राइट. जब भी कोई रेक्टेंगल एरिया है हम उसको बेंड कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, either x axis or about y axis. So here we are taking the larger value because we are trying to bend about this value. ठीक है, आप इमेजिन कीजिए ये जो एक्सिस मैंने ड्रॉ की है उसके अबाउट वो बेंड हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू टेक b एज अ लार्ज वैल्यू, राइट. सो z इज सिंपली i/y. सो i क्या होगा, 1/t सिंपली एंड b क्यूब एंड y क्या होगा, b/2. सो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी हैव इज 1/6 इंटू b स्क्वायर इंटू t. दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड एज इन z वैल्यू, राइट. सो हमने फाइंड किया है. सो व्हाट वी हैव कम आउट इज वैल्यू इज द बेंडिंग स्ट्रेस इज कम्स आउट टू बी 75.12 मेगा पास्कल. अब न्यूमेरिकल में बेंडिंग स्ट्रेस नहीं दी है तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ थंब रूल इट इज गिवन दैट बेंडिंग स्ट्रेस, सेफ बेंडिंग स्ट्रेस कैन बी टेकन 1.4 टाइम्स टू 1.6 टाइम टू द गिवन टेंसाइल स्ट्रेस. तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दी हुई है, 50.
तो हम क्या कर रहे हैं 1.6 टाइम ले रहे हैं. सो द सेफ बेंडिंग स्ट्रेस इज 80 मेगा पास्कल. हमारी कितनी आ रही है 75. तो हम बोल सकते हैं कि भाई इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस इज लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस, राइट, दैट इज 80. सो कॉटर इज सेफ इन shear failure as well as in bending. So these are the only two possibilities for कॉटर. कॉटर क्रश भी हो सकता था, यहाँ से क्रश हो सकता है, तो हमने वो वेरीफाई कर दिया है सॉकेट और स्पिगोट के इक्वेशन में, राइट. लेकिन जो कॉटर के जो डिज़ाइन है इसमें क्या हो सकता है कि ये shear fail भी हो सकता है या फिर बेंड हो सकता है. shear failure में हमने क्या किया है, वी वेरीफाई द डायमेंशंस, राइट. shear failure को लेकर हमने डायमेंशन फाइंड किया, अभी बी कितनी मिलेगी, तो दैट इज सेफ वैल्यू इज 36. लेकिन कॉटर बेंड भी होगा जिस तरह से वो इंसर्ट होता है, राइट. इट इज सिंपली सपोर्टेड, इट वर्क लाइक अ बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट, लाइक दिस. ओके, सो पॉसिबिलिटीज देयर इज अ बेंडिंग. तो बेंडिंग में ये जो सेक्शन हमारा है रेक्टेंगल सेक्शन, कौन सा, B/T, शुड नॉट फेल. तो हमने क्या किया, बेंडिंग स्ट्रेस का जो इक्वेशंस है उसमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड की, सेक्शन मॉड्यूलस दैट हमें मालूम था. सो दैट वे वी सिंपली फाइंड आउट द इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस एंड वी कंपेयर विद द गिवन वैल्यू. तो हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस की इंड्यूस वैल्यू है वो कम है. सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वार्टर जॉइंट है वो shear failure में भी सेफ है और बेंडिंग में भी सेफ है, राइट. सो फाइनली वी हैव ऑल्सो डिस्कस इन द क्लास हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ. देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हो गया, जो लेंथ है क्वार्टर की वो कितनी है, 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोड एंड. ओके, आगे हमने बताया भाई टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दी हुई है, तो वो हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, टू फाइंडिंग द रोड एंड. सिंगल कंपोनेंट पर लगेगा तो हम ये कंप्रेसिव स्ट्रेस डायरेक्ट लेंगे विच इज़ 50 वैल्यू. पर दो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. दो कंपोनेंट, आई बोल रहा हूँ दो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं. सो दैट इज विल बी द क्रशिंग एक्शंस. तो वहाँ पे हमें क्रशिंग स्ट्रेस लेनी है. अब यहाँ पे थंब रूल के हिसाब से जो क्वार्टर की लेंथ है हम कितनी लेंगे, 4 टाइम्स द रोड एंड विच इज़ 96. अब ये बीच में कौन सा है हमारा 42. अब देखो यहाँ पे टेपर दिया गया है 1/24. इसका क्या मतलब है, ये लाइन जो हमारी है क्वार्टर की सीधी है और ये हमारी क्या है, टेढ़ी है. अब इसको ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. ये जो टेपर है हमारा 1/24, इसका मतलब ये हुआ अगर हम 24 मिलीमीटर और 24 यूनिट लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, साथ में हमें कितना जाना है, अप एंड डाउन 1 mm, अप और डाउन. सो दैट इज टेपर. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ लाइन कर देता हूँ, ठीक है. सो ये मेरी हो गई x, ठीक, ये हो गया मेरा y, ठीक है. ये मेरा हो गया m, ये हो गया n. अब दोनों ट्रायंगल में टेपर कौन सा है, सेम है, तो रेशियो इज सेम. सो विद दैट इक्वेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, आई कैन फाइंड व्हाट इज दिस हाइट एंड व्हाट इज दिस हाइट. तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि अगर ये 42 है और हमारा कितना हाफ कितना आएगा 48, टोटल लेंथ कितनी, हाइट कितनी है 96. अगर मैं 48 जाऊंगा तो कितना मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, इफ़ आई एक्सेप्ट दिस टेपर रेशियो, राइट. तो वेरी सिंपल, इफ़ आई मूव 24 मिलीमीटर, आई हैव टू मूव बाय 1 mm. इफ़ आई मूव बाय 48 मिलीमीटर, what would be the possibilities? So 48 divided by 24. So you are going to get some value, right? That is 2. तो 2 क्या करना है, 42 में यहाँ से ऐड कर देना है. सो दिस गोइंग टू बी ए 44 एंड द बॉटम साइड कितनी होगी, सब्सट्रैक्ट कर लो, दैट इज 40. सो दिस वे वी आर गेटिंग अ टेपर पीस ऑफ क्वार्टर. वन साइड कौन सी है, स्ट्रेट है, दूसरी साइड कौन सी है, टेपर है, राइट. बीच में कौन सा है, 42 mm, ये 44 और ये 40. सो विद दैट वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ 1/24 and the overall length is 96. Okay,